Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Kilaingut kibreu kibalasya kem. Bat syong patok hadu lai benai kenti. Hadin bakilasya keno don keti ban rakbor. Bat penyam ya wei ukna ubadang kat saus nem kerta. Hakasnong nagra bil. Haka arpo lai terik urusau arjar arpo. Kilawan ban pensyai syakilat pathai kubor. Dakabaong. Baki bor pulit kila syukem yaki klem kino kisabut. Ban pensisya. Baki lale ya katai kakam. Bat keno ru baki pulit kimshem letok kit bha. Bat nakaliang jongki kila penparu baki pulit. Haduk menta kimshem lakem yaki beriu ki badan kiti sisa haka ban penyam ya utai ukhna kabalajia haki benai telang jong usnem arhajar khat khandai. Kilaingut ki bawan ban pensai sekilat pathai kubor ki bakentum ya ujakayush ki marak upalos ki marak ban uathai ki marak. Bat hakani hi kejok kesngi lawan banye senran lang da umonu areng ukpa jong utai ukhna ubalasya penyap dusmon haki reu runar. Nangta ke rikomoni marak presiden jong ke garo mahila haribhoy lembat kiwei. Kini kilaingut kila kamru baki pulit kimshem la simkhia ban penlong ye ke jingto kit ke bapenya Henry Kishule tang ban pendep rukom. Earlier too, I have reported all the 3 persons who are arrested under this my son's kidnapping and murder case. They are still now, according to my views, they are innocent. Because police have arrested the wrong person only. Instead of arresting the main culprits, one already detained in the jail still now, and along with him, those arrested have been already came out by bail after taking bail, and 2 are men accused of the 2 are absconding, and police has done nothing to arrest them till now, and the case is it seems to be pending. And the main thing is that it is, according to the village, some leaders like Secretary Robinson Areng and his helper like Apnel Kemara, and even my own brother Sonu Areng also doing something wrong, some direction in a bad ways, because at the time of my son's arrest and my son's kidnapping and murdering time. So what happened? Both 3 persons has been falsely reported to the police that this Paulus Marak, Jakis Marak and Athai Marak has killed. But according to my views, as I reported earlier too, they are innocent and they don't have any hands of murdering and kidnapping my son. So in that case, I want to request all the police department, because it is the police department only, because they have done nothing till now. Now almost 10 months passed, but nothing investigation has been done. Nor they have called any statement. They haven't collected any statement from my side also. Maybe it is because of some reason, but I don't know. But it should be investigated properly by the police department, so that the innocent people can be what is called safe, and the man accused, man culprit should be arrested soon by the police department. बिना गलती से जेल में डाल दिया, इसको हम बोलने के लिए अभी आए हैं। लेकिन देखो सर, पहले जो हम लोग का एरिया में बीएसएफ के लिए गाँव का के लिए जमीन बेचा था, बेच के अभी सर ये मुनारिंग का अकाउंट में 87 करोड़ मिल गया बोल के उसका बच्चा को किडनैप कर दिया। उसे वो पैसा मिल गया बोल के हम लोग का गांव का सेक्रेटरी रोबिसन आरेंग वो मिल के अभी हम लोग का गांव में आके वो 3-4 लड़का मीटिंग करके उसका बच्चा को किडनैप कर दिया। तो किडनैप करने का बाद में हम लोग उसका पिताजी का साथ जाके हम लोग थाना में भी इन्फॉर्म दिया था। उसको जो इन्फॉर्म करके वो आदमी लोग को मिला था, मिल के भी हम लोग थाना में उसको पकड़ के दिया था। पकड़ के देने का टाइम भी वो 2 बार हम लोग उसको पकड़ के या 2 बार थाना से उसको छोड़ दिया। बाद में एक तो आदमी को दारिस को पकड़ के लेके एक साथ हम लोग को एक साथ पकड़ के लेके गया। बाद में हम लोग क्यों पकड़ के हमको मालूम भी नहीं, हम लोग की स्टेटमेंट भी नहीं है। ऐसा हम लोग को बिना स्टेटमेंट से लेके ये क्या कोर्ट में लेके आया। मजिस्ट्रेट का सामने वो लड़का जो मर्डर करने वाला, किडनैपिंग करने वाला वो लड़का ही बोला दारिस है। 18 लड़का दारिस हम लोग
दारूस बोला ये 3 लड़का नहीं है, तभी हम लोग को जेल में बेचा है। बस में बेचने के टाइम बेचने का जेल में बेचा, तो जेल में जाके हम दारूस को पूछा, दारूस आप हम लोग को बिना गलती नहीं है तभी हम लोग को क्यों जेल में डाल दिया, पहले उसको पूछा। बाद में दारूस बोला आप लोग मर्डर करने हम लोग के, दारूस और नथिल वो बोला हम लोग के। बाद में वो बोल दिया तो नहीं है तो हम लोग को क्यों पकड़ के लेके आया। वो दारूस बोला आप लोग का नाम देने के लिए बोला, कौन कौन देने, हम लोग का नाम हम लोग को फंसाने के लिए कौन कौन बोला। बाद में बोला दारूस ये क्या प्रोविजन, अपनेल और ये सोनू, वो हम आप लोग का नाम लेने के लिए बोला, बोल के हम लोग को ऐसा फंसा दिया। बाद में तो थाना में भी बोला था, थाना वो क्या था क्लिकता थाना का इंचार्ज है, उसका नाम दबा बोलता है। और ये खानापाड़ा का ये क्या था माइकल बोला था, माइकल भी मालूम था मेरे को, तभी हमको पकड़ के जेल में डाल दिया। हम अभी हम लोग पूछ सकते हैं, उसका पिताजी भी है, लेकिन हम लोग गलती भी नहीं करता, हम लोग मदर भी नहीं करता, हम लोग को क्यों ऐसा पकड़ के बिना गलती से क्यों हम लोग को जेल में डाल दिया। इसी तरह से हम सही है, उन लोग का अभी पुलिस को इंक्वायरी करना है, तो थाना को देखना है, हम लोग का तरफ अभी प्रेस कर रहा है। तो अब रिपो डिस्ट्रिक्ट का गारो महिला का प्रेसिडेंट हूँ, बॉर्डर एरिया का। तो अभी ऐसा हो गया, जो अभी इन लोग ने बता के गया, हम भी ये सुन के बहुत ताजुब हुआ, बहुत खराब लगा, क्योंकि हम लोग एक पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत सच्चे दिल से हम लोग को रेस्पेक्ट था कि इन लोग ये करेगा। लेकिन जानबूझ के अगर ये केस ऐसा दबाया जा रहा है, किस वजह से दबाया गया, माइकल मरा और हम लोग को पिलंगकट्टा का इंचार्ज का नाम शायद बता दिया, तो उन लोग किस वजह से दबाया, इसका इंक्वायरी बिठाया जाए। और हम लोग जो नाम ये 5 नाम है इन लोग लिख के दिया है अभी, ये इमीडिएटली ये आदमी लोग को अरेस्ट करना चाहिए। ये है गांव में, क्यों अरेस्ट नहीं कर रहा है इन लोग, उल्टा ये पिताजी को हैरेसमेंट दे रहा है इन लोग, रोज पुलिस डिपार्टमेंट में बुला के। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कभी भी ऐसा ना हो, क्योंकि इन लोग को और फिर से जान का खतरा हो रहा है, इन लोग को दोबारा जान का खतरा हो रहा है। और एक बात है जो अभी इन लोग ने बताया, तो मैं चाहती हूँ ये केस के लिए हम लोग का रिपो डिस्ट्रिक्ट का जो NGO है MPSO, ये NGO को हम लोग अभी ये केस हैंड ओवर करने मांग रहे हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट लोग हमको कुछ नहीं कर रहा, तो हम लोग सोचा कि हम लोग ये केस को NGO का तरफ से भी जाएगा, हम लोग हाई लेवल का तरफ से भी जाएगा। हम लोग अभी हम लोग CM का साथ इस केस के लिए डिस्कशन करने वाला है, तो हम लोग और ये केस फाइल की मानहानि दावा, ये 3 लड़का को बिना मतलब का जानबूझ के ये 2 OC इंचार्ज ने क्यों दबाया जान के, तो हम लोग इसका मानहानि दावा भी करना चाहते हो और इनका इंक्वायरी अलग से पुलिस डिपार्टमेंट करना चाहिए, मेरे कहने का प्लीज हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू।